Hello students of ninth class. First of all, congratulations on passing the 8th class successfully and welcome to the ninth class. I am your social science teacher Parth Pratap Singh. Okay, so we will start with the economics chapter, the story of village Palampur. Okay, the story of village Palampur. We will learn about it today. So let's start. First of all, think about what do you know about a village? What are the works that people do in a village? What are the sources of money they use? Okay, what are the means of transportations? Do they involve in farming or do they trade? Okay, do they run shops? Think about it. If you observe it carefully and analyze it, you will be able to understand this chapter more enjoyably and easily. Okay. Here is a story of a hypothetical village named Palampur. It is a hypothetical village. Means it is not a real village. ये एक इमेजिनरी विलेज है पालमपुर जो आपके चैप्टर में दे रखा है. ये एक रियल विलेज नहीं है, लेकिन इसमें जो स्टोरी दे रखी है, जो केस स्टडी दे रखी है, जो रिसर्च स्टडी दे रखी है, वो एक रियल विलेज पर बेस्ड है जिसे गिलबर्ट एटिनी ने रिसर्च किया था जिस पर. ठीक है, जो कि एक विलेज था डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में. ओके, एंड व्हाई आर वी स्टडिंग दिस? बिकॉज बाय गोइंग थ्रू दिस स्टोरी you will be able to understand the lives of farmers and landless laborers. You will be able to understand the lives of farmers. How do they live? What are the problems in their life? Okay. And landless laborers. The people who do not own any land. What are the problems they face in their lives? You will be able to know by studying this chapter. You will also know about different farm activities, distribution of land, kinds of crops, means of transport in villages, as well as the sources of capital. Okay. Now, there are some important terms, glossary given in your textbook. Okay. This is important. Tongas, two-wheeled cart pulled by a horse. तांगा जो आपने सुना होगा ये वही है. ओके. बुगी अगर आपने सुना हो, विलेजेस में गए हो तो ये बोगीज. टू व्हील्ड कार्ट पुल्ड बाय बुलक्स और मेल बफेलो. ओके. गुड आप सबने सुना होगा. फिजिकल कैपिटल, नाउ दिस इज मे बी अ न्यू टर्म. ओके. फिजिकल कैपिटल, व्हाट इज दिस? वेराइटी ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन. The variety of things required during production of crop is called physical capital. Fixed capital is what? Tools, machines, buildings required for a production. Okay. All the tools and machines like thresher, okay, harvester, tractor, all these come under fixed capital. Okay. Now working capital. Working capital is raw materials and money in hand. The raw materials like seeds and money, it comes under working capital. Okay. बीघा, a unit of measuring farmland area. गांव में आज भी आपने सुना होगा बीघा से ही नापा जाता है खेत को, है ना. So this is a unit of measuring farmland area. Okay. Now Guintha. Okay. Guintha is what? Guintha is a unit of measuring land area. This is also a unit of measuring land area. Guintha. Okay. Hectare. Hectare is what? A standard unit of measuring land area. A standard unit of measuring land area. These are Biga and Guintha are also a unit of measuring land area, but they are not standard units. Hectare is a standard unit. Okay. Like meter is a standard unit. Okay. Kharif crops grown during rainy season. You all know that, right? There are three types of crops:
Kharif, Rabi and Zaid. Kharifs are crops grown in rainy season such as jowar, bajra. Rabi crops grown during winter season such as wheat, gram, barley, etc. Okay, and there is a third type of crop called Zaid. Zaid is crops grown in the middle of between Kharif crops and Rabi crops. Okay. Multiple cropping. Growing more than one crop on a piece of land during the same year is called multiple cropping. अगर एक ही साल में एक से ज्यादा क्रॉप एक ही लैंड एरिया पर उगाई जाती है तो उसे बोलते हैं हम मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके. H5Vs, high yielding variety seeds. Okay. High yielding varieties and high yielding variety seeds. Green Revolution, an event in agriculture history of India about 1960s when farmers started using H5Vs to grow more and more wheat and rice. ग्रीन रिवॉल्यूशन एक एग्रीकल्चर मूवमेंट था जिसमें क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था. ओके. इंडिया में इसे लीड किया था MS स्वामीनाथन ने. ओके. पर्शियन व्हील्स. ओके. a means of irrigation around 1970 or before it. It is a means of irrigation. रेहेट जिसे बोलते हैं कई बार, है ना. Marginal and small farmers having land less than 2 hectares are called marginal or small farmers. Small farmers हम किसको बोलेंगे? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होगी. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैविंग लैंड मोर देन 2 हेक्टेयर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड होगी. ओके. Dairy, milk collection and processing unit. Dairy is a milk collection and processing unit. You all know that. Okay. These are the important terms that you should know before reading the chapter to understand it properly. Okay. Now begins the story of Palampur. Okay. Palampur is a medium-sized typical Indian village having about 450 families of different castes, out of which there are 80 upper caste families. 1/3 of total population of village consists of SCs. Rest are STs and OBCs. Okay, Palampur is a medium-sized typical Indian village. There are 450 families living in the village. Okay, of different castes. Most of the houses have electric connections. वहाँ पर गांव में बिजली भी है. Tubewells and small businesses are run by electric power. जो ट्यूबवेल्स और स्मॉल बिजनेसेस हैं, they are run by electric power. Okay. The village has 2 primary schools and a high school. Besides primary health center, there is a private dispensary. Okay. The village has 2 primary school, 2 primary schools हैं, एक हाई स्कूल है. प्राइमरी स्कूल किस क्लास तक होता है? 5th क्लास तक. ओके. एंड हाई स्कूल इज टिल 10th क्लास. ओके. तो 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं 5th क्लास तक एंड एक हाई स्कूल है गांव में. बिसाइड्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर देयर इज अ प्राइवेट डिस्पेंसरी. प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि गवर्नमेंट का होता है, उसके अलावा एक डिस्पेंसरी भी है प्राइवेट, अवेलेबल फॉर द सिक पीपल ऑफ द विलेज, जो कि अवेलेबल है कोई भी सिक पीपल अगर होता है विलेज में तो उसके लिए. एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू अ बिग विलेज रायगंज. एक कच्ची रोड है जो कि गांव को, पालमपुर को जोड़ती है एक बड़े गांव से जिसका नाम है रायगंज. एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट टाउन शाहपुर, और आगे जाकर एक टाउन से जिसका नाम है शाहपुर. ओके. दिस इज द कंडीशन ऑफ द विलेज. नाउ फार्मिंग इन पालमपुर. Palampur has 200 hectares cultivated area of land with full facility of irrigation. 200 hectares cultivable land है, ठीक है ना, cultivated land है जिसमें फुल फैसिलिटी है इरीगेशन की, क्योंकि बताया ऊपर ट्यूबवेल्स वगैरह हैं उस गांव में जो कि बिजली से चलते हैं. फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर. जो फार्मर्स हैं वो एक साल में 3 क्रॉप्स उगाते हैं. ज्वार एंड बाजरा इन रेनी सीजन जुलाई टू सितंबर, पोटैटो अक्टूबर टू दिसंबर, एंड व्हीट दिसंबर टू अप्रैल. ओके. 3 क्रॉप्स उगाते हैं, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग होती है गांव में. सम लैंड एरिया इज ऑल्सो यूज्ड फॉर शुगर केन प्रोडक्शन. कुछ एरिया शुगर केन प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है. इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स आर द मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन.
जो मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन है वो है इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन पालमपुर। ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं ऊपर, वो देख लीजिएगा कि ज्वार क्रॉप कैसी दिखती है, बाजरा क्रॉप, पोटैटो क्रॉप, व्हीट क्रॉप एंड शुगर केन क्रॉप, ताकि आपको पता रहे। ओके, आप आइडेंटिफाई कर पाए। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फैमिलीज, दैट इज 150 आउट ऑफ 450 ऑफ पालमपुर आर लैंडलेस। 1/3 जो फैमिलीज हैं विलेज की वो लैंडलेस है, यानी कि उनके पास खुद का लैंड नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स, SCs। अबाउट 240 families have small plots of land less than 2 hectares। तो 240 families हैं अबाउट, उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स है, यानी कि वो स्मॉल फार्मर्स हैं। जो 1/3 फैमिलीज हैं, यानी कि 150 फैमिलीज आउट ऑफ 450, वो तो लैंडलेस है, उनके पास खुद की जमीन है ही नहीं। जो 240 फैमिलीज हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, यानी कि स्मॉल फार्मर्स हैं वो। देर आर ओनली 60 फैमिलीज विच हैव 2 हेक्टेयर्स और मोर लैंड। 450 फैमिलीज में से सिर्फ 60 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर्स है, उससे ज्यादा लैंड है। अ फ्यू ऑफ देम हैव 10 हेक्टेयर्स और मोर लैंड, और उनमें से कुछ के पास 10 हेक्टेयर्स या उससे ज्यादा लैंड भी है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर लैंड का वो अनइवन है ना, एक सा नहीं है। किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है और किसी के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। ओके, बहुत कम फैमिलीज हैं जिनके पास ज्यादा लैंड है, यानी कि लार्ज फार्मर्स हैं वो। स्मॉल फार्मर्स, सोर्सेज ऑफ लेबर इन पालमपुर। अब लेबर का सोर्स क्या है पालमपुर में? लेबर का सोर्स है पालमपुर में स्मॉल फार्मर्स होल्डिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड नीड नॉट एनी लेबर फ्रॉम आउटसाइड एंड देयर फैमिलीज हैंडल ऑल द वर्क। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास तो इतना लैंड ही नहीं है कि उनको लेबर हायर करने की जरूरत पड़े, ठीक है ना। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनको हायर करने की जरूरत पड़ती है ना। हायर करना मतलब कुछ टाइम के लिए आपकी सर्विसेज लेना, है ना। तो वो कहां से लेते हैं लेबरर्स? दीज लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो ये जो लेबरर्स हैं जो हायर करने के लिए हायर किए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? या तो जो लैंडलेस फैमिलीज हैं वहां से, ठीक है ना, जिनके पास खुद का जमीन ही नहीं है खुद की कोई, वहां से आते हैं क्योंकि उनको काम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है ना। और या जो स्मॉल फार्मर्स हैं यानी कि 2 हेक्टेयर्स लैंड से कम लैंड है जिनके पास, वहां से आते हैं। ओके, द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स एज 300 रुपीज पर डे। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने मिनिमम वेज लेबरर्स के लिए डिसाइड कर रखी है 300 रुपीज पर डे। इट इज वेल नोन दैट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट गेट रेगुलर वर्क थ्रू आउट द ईयर। लेकिन ये वेल नोन है कि जो ज्यादातर लोग हैं उनको पूरे साल काम नहीं मिलता, ठीक है ना, क्योंकि फार्मिंग का काम पूरे साल नहीं चलता है। फार्म वर्क इज अवेलेबल ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन्स ओनली। जब सोइंग होती है या हार्वेस्टिंग होती है तभी सिर्फ लेबरर्स को हायर किया जाता है। ओके, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लैंडर्स एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हैं वो बोरो करते हैं मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लैंडर्स, जो विलेज के साहूकार होते हैं, सेठ होते हैं, उनसे लार्ज फार्मर्स से, है ना, मनी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। और उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होती है। वो बैंक से नहीं लेते हैं। बैंक से क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एक तो उनको बैंक पर विलेजर्स को भरोसा नहीं होता, है ना, क्योंकि वो बैंकर्स को जानते नहीं है ना। तो वहां पर ऐसा समझा जाता है कि जिनको हम जानते हैं वो ज्यादा भरोसेमंद है, जबकि ये गलत है। बैंक्स लो इंटरेस्ट रेट पे भी लोन्स देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है उनके लिए, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाते ज्यादातर विलेजर्स। उन्हें लगता है कि हम जिसे जानते हैं, जो गांव के लोग हैं, सेठ हैं, वो ज्यादा सही हैं, वो ज्यादा सही हमारी मदद करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। दूसरा ये भी चीज है कि गांव में पहचान पर पैसे दे दिए जाते हैं, है ना। कोलेट्रल एकदम से नहीं मांगा जाता, जबकि बैंक्स में क्या होता है, लोन के लिए आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा। कोलेट्रल यानी कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, या तो अपनी लैंड या ज्वेलरी या जो भी आपके पास चीज हो, जितना आप लोन ले रहे हैं उसके अमाउंट के हिसाब से। तो वो चीज देने से भी विलेजर्स डरते हैं, इसलिए वो विलेज के ही मनी लेंडर्स से या लार्ज फार्मर से बोरो कर लेते हैं मनी। ओके, लोन ले लेते हैं।
They face great difficulty to get over these loans and sometimes they are treated very badly by money lenders. लेकिन जब वो इन मनी लेंडर से विलेजेस के ले लेते हैं पैसे तो वो बहुत बुरा बर्ताव करते हैं मनी लेंडर्स उनके साथ और वो एक जाल में फंस जाते हैं, ओके, लोन ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट कई बार उनके प्रिंसिपल से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो उन्होंने जितनी मनी बोरो की थी उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे हो जाते हैं, तो इसलिए वो लोन ट्रैप में फंस जाते हैं. वाइल मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, जबकि मीडियम और लार्ज फार्मर्स को मनी बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके पास पहले की सेविंग्स होती हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है. मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हार्डली सेल सम अमाउंट ऑफ देयर फार्म यील्ड्स बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज कंज्यूम्ड इन देयर ओन नीड्स. जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं वो बहुत कम अपनी जो फसल है वो बेच पाते हैं क्योंकि वो खुद की कंज्यूम करने के लिए ही फसल रखते हैं ताकि वो खुद ही खा पाए. इतनी फसल हो पाती है स्मॉल एरिया में, इतनी फसल हो पाती है ना, स्मॉल एरिया ऑफ लैंड में, तो वो खुद के खाने के लिए बचा पाते हैं, वो सेल नहीं कर पाते हैं. ओके, नाउ सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स. Marginal and small farmers hardly sell some amount of their farm yields because most of it is consumed in their own needs. Okay. But medium and large farmers manage to sell their farm products in the nearby market. लेकिन जो large farmers होते हैं, medium farmers होते हैं, वो nearby market में बेच देते हैं अपनी फसल को, जो है उनके पास एडिशनल फसल होती है, सरप्लस क्रॉप होता है. ठीक है. These products are carried to market by bullock carts और ट्रैक्टर ट्रॉलीज, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बुलक कार्ट्स और ट्रैक्टर ट्रॉलीज से मार्केट ले जाए जाते हैं. ओके, सो दीज आर एक्टिविटीज बिसाइड्स फार्मिंग. ओके, ये है अब आपकी एक्टिविटीज बिसाइड्स फार्मिंग. फार्मिंग के अलावा कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना. तो ये जो है फार्मिंग के अलावा एक्टिविटीज, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, आपका असाइनमेंट ये है आज का कि आपको पता करना है कि आपके खुद के विलेज में, है ना, सबका विलेज होगा ना खुद का, तो खुद के विलेज में कौन कौन सी फार्म एक्टिविटीज होती हैं, है ना. वहाँ पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इवन है या अनइवन है ना, सबको एक सी लैंड मिली हुई है या सबके पास अलग अलग लैंड है ना, अलग अलग, कुछ छोटे किसान है, कुछ बड़े किसान है, और वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं कौन कौन से सीजन में. ओके, वहाँ पर कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ मनी है ना, लैंडलेस लेबरर्स हैं या नहीं हैं तो उन्हें हायर किया जाता है क्या सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ये सब आपको पता करना है. ओके, और ज़्यादा नहीं, 1 पेज पर लिखना है पॉइंट्स में. ओके, दिस इज योर होम असाइनमेंट. सो इफ यू हैव एनी डाउट you can reach me. I hope you have understood the chapter till now. We will meet in the next class. Okay, thank you.